Hello guys, this is Hitesh Tripathi and this is editorial video for Code Forces round 742 division 2 problem A and B. Okay, so because these both problems were easy, so मैं इनका editorial पहले बना रहा हूँ and after that I will make editorial for question C. Okay, so question domino disaster. What we have in this question is Alice has grid with 2 rows and n columns. Okay, so you can easily assume that grid कि जिसमें 2 रो और n columns हैं. Okay, and she fully covers the grid using n dominoes of size 1 cross 2. So Alice fully covered that grid by dominoes of size 1 cross 2. Okay, now she decided to show one row of the grid to Bob, help Bob figure out what the other row of grid looks like. Okay, so what the question is saying is that you have one grid of 2 cross n. Okay, 2 rows and n columns. Okay, and you know one row of this 2 cross n grid. Okay, तुम्हें ये पता है कि that suppose ये L R U D L R. Okay, ये कुछ ऐसी है, तो तुम्हें ये वाली ग्रिड बतानी है. इस ग्रिड ये ग्रिड होगी क्या? ओके फाइन. सो व्हाट यू कैन डू इज, सपोज कोई एक 2 क्रॉस 1 डोमिनो है. ओके, वो उसको रखने के दो तरीके हो सकते हैं. either you will place that domino in this way and or you will place that domino in this way. Okay, so if you will place that domino in this way, then you can write it as LR. Okay, and if you are placing it in this way, then you can write it as up down or whatever, down up. Okay fine. So whenever you are getting one LR, तुम्हें कोई भी LR मिल रहा है जब भी, है ना, तो उस डोमिनो के नीचे हमेशा कौन सा डोमिनो लगेगा? LR. एंड इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आई गेस, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ अ 2 क्रॉस n ग्रिड और तुम्हारे पास सिंपली 2 रोज हैं. तो अगर तुमने एक डोमिनो ऐसे रखा है तो उसके नीचे फुली कवर करने के लिए दूसरा डोमिनो भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो वेन एवर यू विल गेट एन LR, यू हैव टू पुट इट अ सेम डोमिनो दैट इज LR. Okay, in this way. And whenever you will get a U or D, okay, अगर तुम्हें यहाँ पे U मिला that is up, ठीक है, तो तुम्हें उसके नीचे वाला डोमिनो आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा. दैट इज तुम एक डोमिनो ऐसे रख रहे हो जिसका तुम्हें अपर वाला पार्ट गिवन है और नीचे वाला पार्ट जो होगा वो डाउन होगा. ठीक है, तो तुम्हें जब भी U मिले यू हैव टू मेक बिलो रो एज D एंड जब भी D मिले यू हैव टू मेक बिलो रो एज U. ओके, सो आई गेस इसका कोड दिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी. स्टिल एक आंसर स्ट्रिंग बना ली, n में इटरेट किया. वेन एवर यू विल गेट अ u, सिंपली मेक इट एज d. वेन एवर यू विल गेट d, सिंपली मेक इट एज u. और बाकी तुम्हें ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है, ज़रूरत इन द सेंस कि जब भी तुम्हें LR मिल रहा है तुम्हें खाली उसको L और R बना देना है. ठीक है, तो सिंपली अगर तुम्हें u और d के अलावा कुछ भी मिला तो तुम्हें अगले 2 कैरेक्टर्स को दैट इज़ L और R को सिंपली SI plus 1 के इक्वल बना देना. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट मी गो टू द सेकंड क्वेश्चन. सो इन प्रॉब्लम सेकंड, mix or mix up. Okay, Alice gave Bob 2 integers A and B where A is greater than 0 and B can be equals to 0 and greater than equals to 0. Being a curious boy, Bob wrote down an array of non-negative integers with max value of all elements equals to A and XOR value of all elements equals to B. Okay, so in simple words, what question is saying is that we have 2 integers A and B and we have an array. Okay, we have an array. Suppose this array is ARR. Okay, and जो इस array का max है, this value is A and जो इस array का total XOR है that value is B. Okay fine. What is the shortest possible length of the array Bob wrote? और हमें shortest possible length of this array बतानी है जितनी यूज में हमें लानी ही पड़ेगी such that इस array का जो XOR है वो B बन जाए और जो max है वो A बन जाए. Okay fine. So you can say that A की जो वैल्यू है वो कितनी है 10³ into 10⁵, B की 3 into 10⁵. ओके फाइन, यहाँ तक सब ठीक था. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. सो एक चीज़ देखो कि जब भी किसी एरे का जो वैल्यू है वो XOR है. ओके, फर्स्ट थिंग वी आर गिवन इज दैट A is max
of some array. Okay, if a is max of some array, then 0 to a minus 1 सारे के सारे नंबर्स उस एरे में प्रेजेंट होंगे एंड इट इज मस्ट इन हैपनिंग. ओके, लाइक ये हमेशा पॉसिबल होगा कि कोई भी एरे तुम्हारी अगर इस मैक्स के साथ ए वैल्यू जिसकी होगी, ठीक है, एनी एरे विद मैक्स वैल्यू ए विल हैव 0 to a माइनस एलिमेंट ऑलवेज इन इट. ओके, तो इसमें 0 1 2 3 4 अप टू a माइनस 1 ये एलिमेंट्स तो आने ही आने. ओके, मिनिमम पॉसिबल लेंथ कितनी हो गई तुम्हारी एरे की? a माइनस 1. ओके, इतनी लेंथ तो होगी. अब इससे ऊपर कब होगी ये हमें देखना है, ठीक है. अब मिनिमम इतनी लेंथ तो होनी है. अब हमें एक पॉसिबिलिटी तो हमारी हो गई कि अगर हमारी ये एरे है दैट इज 0 to a माइनस 1 देन अवर मैक्स विल बी a. ओके, ना इससे सेकेंड कंडीशन बस हमें चेक करनी है कि इन सारे एलिमेंट्स का जो ज़ॉर है दैट इज इक्वल्स टू b और नॉट. अगर इन सारे एलिमेंट्स का ज़ॉर b है देन व्हाट वी कैन सिंपली डू इज वी कैन प्रिंट आवर आंसर एज a माइनस 1. वाई? क्योंकि मिनिमम लेंथ तो हमारी यही है एंड सिंपली आवर आंसर विल बिकम दिस एरे ओनली. ओके, सो वी विल सिंपली चेक दैट इफ 0 से a माइनस 1 तक के एलिमेंट्स का जो ज़ॉर है वो b के इक्वल आ रहा है, देन इन दैट केस आवर आंसर विल बी सिंपली a माइनस 1. ओके, फाइन. नाउ सेकेंड केस, जब मैंने अपनी एरे में 0 to a माइनस 1 सारे के सारे एलिमेंट्स डाले, बस इस एरे का जो ज़ॉर है दैट इज नॉट इक्वल्स टू b. सॉरी, अब मुझे इस एरे का ज़ॉर b बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इस एरे का ज़ॉर जो है b बनाने के लिए इसमें कौन से एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे? ओके, तो फॉर चेकिंग दैट व्हाट वी कैन डू इज मैं इस पूरे एरे का ज़ॉर निकाल लूँ, ठीक है, और सपोज इसका ज़ॉर मेरा आया क्या? ज़ॉर डैश इज इक्वल्स टू x. ओके, ये मेरा ज़ॉर आया इस एरे का. ओके, फाइन. नाउ what I have to do is suppose there is a number y and by doing x or y I am getting XOR b. Okay, by making x or y I am getting value b. So what I can say is that मैंने अपनी एरे में 0 से a minus 1 एलिमेंट्स ऑलरेडी पुट कर दिए हैं. वन एक्स्ट्रा एलिमेंट what I have to put is y. And if I put this y in this array, my XOR will become equals to b. Okay, so in this way I can approach for next cases. Okay, now मुझे एक कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका XOR x के साथ करने में b आ जाए. Okay, अब ऐसा एलिमेंट मैं सिंपली कैसे निकाल सकता हूँ? x XOR y is equals to b है तो x XOR b is equals to y हो जाएगा. ओके, ये वाली एक XOR की प्रॉपर्टी वी ऑलरेडी नो. ओके, आई एम सपोजिंग यू ऑल नो दिस प्रॉपर्टी ऑफ XOR. फाइन. ओके, नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू चेक इज दैट x XOR b शुड नॉट बी इक्वल्स टू a एंड दिस इज द मेन कंडीशन. फाइन. वाई? बिकॉज अगर x XOR b इज इक्वल्स टू y, जो तुम y वैल्यू है, ठीक है, जो तुम पुट करने वाले हो, अगर वो a के इक्वल है देन जो तुम्हारी पहली कंडीशन थी दैट इज मैक्स ऑफ दिस एरे मस्ट बी इक्वल्स टू a, ये वाली कंडीशन तुम्हारी फॉल्स हो जाएगी. ओके, फाइन. तो अब यहाँ पे मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ पूरा अभी तक जो मैंने समझाया है, ठीक है. फर्स्टली दैट इफ 0 to a minus 1 एलिमेंट्स का जो XOR है, इफ XOR ऑफ दीज एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू b, then my answer will be simply a minus 1. Okay, fine. If these elements XOR does not is equals to b, then what I will simply check is that XOR of these elements, let's say XOR of these 0 to a minus 1 elements is x. Okay, XOR b. Okay, I will make XOR of 0 to a minus 1 XOR b is equals to, there will be some value. Okay, I will simply check that if this value is equals to a and if this value is not equals to a sorry,
then what I can simply do is I can simply say that I have some value which I can put in this array and can make this complete array XOR is equals to B. Okay, so in this case, when XOR of 0 to a minus 1 elements and XOR B does not is equals to A. Okay, let me clear this simply first. Okay, when this case does not is equals to becomes does not is equals to A, I can simply say that my answer can be equals to A minus 1 plus 1. Sorry, 0 to a minus 1 complete elements plus 1. ओके सॉरी, a माइनस 1 की जगह आप इसको a करो, ठीक है, बिकॉज 0 टू a माइनस 1 टोटल एलिमेंट्स a होते हैं. ओके, सो माई बैड, आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके, तो इन दिस केस माई आंसर विल बी a. ओके, सो this is the case when this condition is satisfying. Fine. Okay, now if this condition is not satisfying, अगर तुम्हारा XOR of 0 to a minus 1 XOR B is equals to a है, then in that case what you can do is sorry, you can simply make your answer as a plus 2. एंड आई डोंट थिंक कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है. सपोज तुम्हारा जो XOR A2 ये आया, ठीक है, तुम्हें सिंपली इसको सिंपली पहले सबसे पहले क्या करना है, XOR ऑफ 0 टू a माइनस 1 का एक एलिमेंट डालना है इसमें. XOR ऑफ 0 टू a माइनस 1, एक एलिमेंट तुम इसमें अपनी एरे में ये डालोगे, ठीक है. लेट मी क्लियर दिस वन. तो तुम्हारी एरे में 0 टू a माइनस 1 सारे एलिमेंट्स तुम ऑलरेडी डाल चुके थे, ठीक है. सपोज इसका XOR जो था वो था x, तुम एक एलिमेंट इसमें x डालोगे इस एरे में, ठीक है. अब इस टोटल का XOR कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0. ओके, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट तुम इसमें डालोगे वो क्या हो जाएगा, b. ओके, तो इन दैट केस टोटल आंसर विल बी सिंपली a plus 2. ओके, सो कंक्लूडिंग दिस होल सॉल्यूशन, I have 3 cases. First case is when 0 to a minus 1 elements XOR is equals to b. In this case my answer will be simply total number of elements in my array will be a. Okay, not a minus 1. मैंने पहले a minus 1 बोल दिया था. Okay, second case, अगर ये वाला केस नहीं है तो second case will be 0 to XOR of 0 to a minus 1 XOR b does not is equals to a है, then my simply answer will be a plus 1, and else my answer will be a plus 2. Fine. So this is the whole solution. Now one thing more, in this case here you have to find out XOR of 0 to a minus 1. Don't use for loop for this, otherwise it can give TLE. Okay, you can simply Google it, that XOR of first n natural numbers, you will get a O of 1 solution. Okay, XOR of first n natural numbers, and you can get it easily. Okay, so I am not going to tell you that, I will simply go to the solution. Okay, so in this function I am counting out XOR of first n natural numbers, then I will simply make a base case, like जब a is equals to b और a is equals to 1 है, तो ये मेरा बेस केस था, क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी, ठीक है. इन तीनों केसेस में ये वाला केस फॉलो नहीं हो रहा है, दैट्स वाई. फिर उसके बाद सिंपली सेम चीज़ है. आंसर में मैंने XOR ऑफ a माइनस 1 एलिमेंट्स निकाला, फर्स्ट a माइनस 1 एलिमेंट्स. अगर वो b के इक्वल है तो सिंपली मैंने क्या डाल दिया, a. अगर डज नॉट इज इक्वल्स टू a है उसका XOR b का, तो a plus 1, अदरवाइज आंसर विल बी a plus 2. Thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask me in comment section, and for code you can ask me in comments. I will provide you the link of code. Thank you guys for watching.